प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा के पहले चरण में अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। राजधानी आक्रा के एयरपोर्ट पर घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वो घाना के दौरे पर राष्ट्रपति महामा के न्योता पर गए हैं और ये दौरा दोनों देशों के लिए अहम है, ऐतिहासिक है और दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा ग्लोबल साउथ और अटलांटिक के दोनों छोर के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम है। पीएम मोदी ने घाना को ग्लोबल साउथ का एक अहम साझेदार बताया, जो अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएम ने उम्मीद जताई कि इस दौरे से निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास सहयोग के क्षेत्र में भारत घाना के रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि घाना की संसद को संबोधित करना उनके लिए एक सम्मान की बात होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया का दौरा करेंगे, जो लगभग 60 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला राजकीय दौरा होगा। उन्होंने इसे ब्राजील के साथ संबंधों को गहराने और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर विचार साझा करने का मौका बताया। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव नाम्बिया होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया है। It is the first leg in the Africa visit of His Honorable Prime Minister Narendra Modi on his 5-nation tour, which ends in the BRICS summits in Brazil. The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, infrastructural development, human resources, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. And these include the Memorandum of Understanding on the establishment of a permanent joint commission between our two countries, the Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. We've also signed an MOU on cultural exchange between our two countries, and also an MOU between the Bureau of India Standards and the Ghana Standards Authority. Following consultations between our Honorable Minister of Foreign Affairs and the Indian High Commissioner, we also have requested the signing of MOUs on vaccine manufacture and production, MOU on supply of agricultural machinery and implements, and an MOU on defense cooperation. Ladies and gentlemen, this visit could not have happened at a better time, as government is committed to pursuing its reset agenda to provide the needed support to the Ghanaian people. Government will therefore leverage on its relationship with like-minded countries such as India to achieve our set objectives. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing and the IMF program. Going forward, Ghana and India intend to pursue these engagements through diplomatic mechanisms, including Foreign Office consultations with each other, as well as the Permanent Joint Commission for Cooperation, to give effect to the intended outcomes of our engagement for mutual benefit. Our esteemed guest, Prime Minister, will be decorated with the prestigious National Award of the Office of the Order of the Star of Ghana at a state banquet. यह अत्यंत गर्व की बात है कि मुझे यह अवसर मिला है। अय्या मे अनेजे से मेवोहा घाना में
जिस आत्मीयता, गर्मजोशी और सम्मान से हमारा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं। राष्ट्रपति जी स्वयं एयरपोर्ट आए, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दिसंबर 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रपति महामहिम दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी शानदार जीत के लिए मैं एक बार फिर उनको बधाई देता हूं। यह घाना के लोगों का उनके नेतृत्व और विजन के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं। हमारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत से अन्य देशों को प्रेरित किया है। आज भी पश्चिम अफ्रीका में घाना एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अन्य देशों के लिए बीकन ऑफ होप है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस, विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नान आईसीटी सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामहिम के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामहिम जी के फील्ड घाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में अपनी वैश्विक पहचान को मजबूत किया है और एक प्रभावशाली ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। उनकी नीतियों, नेतृत्व क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी ने उन्हें दुनिया भर में सराहा है। पीएम मोदी को अब तक 20 देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ये सम्मान उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण, भारत की बढ़ती ताकत और विदेश नीति में उनकी सक्षमता को दर्शाता है। उनका प्रभाव पूरी दुनिया में न केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि वो भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी सफल रहे हैं।
कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। यह सम्मान राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। यह पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक सफलता के लिए कई देशों से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2016 में उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा गया। इसके बाद अफगानिस्तान ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार मिला, जबकि 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। उसी साल रूस ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान से नवाजा। इसके अलावा उन्हें मालदीव के निशान इजुद्दीन, बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड और अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। 2021 में भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से नवाजा गया। 2023 में उन्हें पलाऊ के एबाकल अवार्ड, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार और पापुआ न्यू गिनी के ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2023 में मिस्र ने उन्हें ऑर्डर ऑफ नाइल, फ्रांस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और ग्रीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, नाइजीरिया का द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, बारबाडोस का ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस और गायना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार भी मिला। तो ये तमाम आपने जो उपलब्धियां सुनी वो प्रधानमंत्री की थी, जिन्हें अब तक 20 देशों से पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें 20 देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।